we know that there are so many problems, Geeta ji, in politics. Why women are not there in politics? But when we know that political parties are eyeing them as a vote bank, but why women are not so organized, or they are not able to show their collective strength in order to influence these politicians and the policy makers in order to get things done in their favor? Yes, this is a very important question, because this is a question what we should ask ourselves. Why women are not sensitized? Because right from the college days, we need to work on the student unions, we need to work on the organizations, we need to work on uniting the entire women organizations force into one platform to bring in this change. Because different things we are fighting. Now in Telangana, I have seen some women organizations coming up and saying, we will vote only for the party that gives 33% reservation for women. But that's not happening. But where will they vote? There's some problem. I have announced in Andhra Pradesh that I will bring in 33% of tickets to women and not 33. I am committed in giving 50% of reservation to women in my party for the elections, for the coming up 2019 Assembly and Parliament elections. If I get good candidates who are actually capable of handling these elections, I am just screening. I have selected around 20-25 people. Everybody is a woman right now. I am trying to bring in more women into this one. Seeing me, looking at me, one more party, today I have seen in the paper that they have also announced 33% reservation for women. One Pawan Kalyan, who is a film artist, he also announced suddenly that he will give 33% of reservation for women. This we have been listening for decades together. But first, as Jayaji rightly said, first women have to be involved into this policy making, involved into this political parties in a bigger way. So until they are being first involved, we need that exposure, because talking politics is different, being in politics is very different. It is like everybody would like to talk politics. Criticizing is very easy, but when you actually walk into the shoes of a politician, it is not easy, it is very difficult. You face so many problems day in and day out, and there are situations when I felt many times, it is not my cup of tea. I wanted to quit politics at some point of time. But I didn't do that, because I had the support of my family, support of my people who actually wanted me to be there, and support of so many other elements which actually boosted my energy, and today made me come out with a party called Jana Jagruti, which is actually now I am concentrated on working. Right now also I am going to contest some seats in Telangana also. So that also I am planning to give it to women only, because in Telangana there is a very different situation. I think out of 119, the TRS has given 6 or 7 seats to women. That is more discouraging. And you will see one more important thing I want to tell you. The Women and Child Welfare Minister is a male. There is no Women Child Welfare Minister also in Telangana. There is not even one women minister in the entire state. So that is very bad. And people talk about women empowerment. That is what is the funniest thing there. They talk about women empowerment. They say women are our strength, and they don't want ban on liquor even during elections. That is again today's paper news, saying that TRS government doesn't want ban on liquor. So where are we going? One of the professor in the colleges, recently when I was visiting the colleges, I normally visit colleges to sensitize the students on this lawmaking. So when I went to the college, one professor asked me, Madam, there are so many drunk and drive cases that are being caught every day in almost every city in the country. If a man cannot drunk and drive, if a man is drinking and driving, it is only problem for his safety or somebody who is on the road. But if a man who is drinking and voting, he is ruining the country. He doesn't know in which sense he is voting. So if a man can drink and drive and can be caught by the police, what do we do with people who are drunken to come and vote? Don't we need to stop such people who are voting their leaders in a drunken stage? So I have also approached the election commissioner and given a representation saying these people too should be stopped. They should be barred from voting. They should be, those who come drunken in a drunken state should be barred from voting. This is one of the reform I have suggested. So there are so many elements like this which women need to
to actually combine, put in their combined efforts across the country. If we have to sustain our position, or we have to actually create a situation where women vote will be the prime basis for choosing a leader, we have to sensitize all the women groups to join into an organization or to join hands in this mission. And in India, if we can bring in that sort of, in Mexico, one of the parliamentary delegation from Mexico has come. I asked them, what is your percentage of seats in the parliament? They said it is 45%, and when they asked me, I said little over 10%. They said, why little over 10%? Then I asked them, do you have reservation in Mexico? They said, madam, please hold your language. We don't have reservation. It is an obligatory. And if any political party is not having 50% of women in their roles, their recognition itself will be cancelled. That is the state of affairs in the other countries. Why don't we take such models? Why don't we actually emphasize on getting our status or our space, which is required rightfully? So this is what we should sensitize among the women or the young women who are coming into politics right now. जी, बहुत सारे नेता हैं जो 50% महिलाओं के सीएम बनने की बात करते हैं. जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखो तो पता चलेगा कि उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया. वो भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो हमारे सामने हैं. तो शुभम, आपसे बात करेंगे, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं की वोट बैंक की आपने बात की, ऑर्गेनाइज नहीं है. अब क्या ये समय आ गया कि जिस तरह से कोई रिलीजन है, कोई कास्ट है, सब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महिलाओं को भी अब अपनी राजनीति करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? क्योंकि अब हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे. हम सभी जानते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं. जी देखिए, शुरुआत इसकी बहुत पहले से करनी पड़ेगी. अगर आप घरों के अंदर देखेंगे तो घरों के अंदर भी उस लेवल का एम्पावरमेंट नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए. स्पेशली अगर आप रूरल इंडिया चले जाते हैं, या फिर अगर आप अभी लिटरेसी डेटा देखिए तो मेल लिटरेसी इंडिया में 80% टच कर चुका है, लेकिन फीमेल लिटरेसी स्टिल अराउंड 65-66%. तो ये जो 15% का डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपको मिटाना पड़ेगा. एक तो रिजर्वेशन इज डेफिनेटली वन वे टू डू इट. द अदर वे इज कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली ये बता दिया कि आपको महिला का वोट अगर चाहिए तो कम से कम 33% टिकट महिला को दीजिए. या फिर जितनी भी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेंट्रल वर्किंग कमिटीज़ हैं, जो भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी है, उन सारी कमेटियों पे कम से कम 33% वुमेन हो. अगर ऐसा लोगों ने कह दिया तो बिल्कुल होगा. बट ये कहने वाले लोग कौन होंगे? क्या आज रूरल इंडिया में जो महिला है वो बाहर निकल के ये बोलेगी कि अच्छा इस पार्टी में 33% महिलाएं नहीं है, इस पार्टी को हम नहीं वोट देंगे, भले ही यहाँ पे जो लोकल नेता लड़ रहा है वो मेरे पति को पर्सनली जानता है, हमारे ही जाति का है, क्या फिर भी वोटिंग उसके अलावा हो सकती है? ये एक असेस करने वाली बात है. हमारे असेसमेंट में तो आज के डेट में ऐसा नहीं आ रहा है कि ये वोट टूटेगा. अगर ये करना है तो आपको बहुत पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी. ये जया जेटली जी हैं, गीता जी हैं, बोथ ऑफ देम आर रियली अकॉम्प्लिश्ड पीपल. अगर ये लोग जाके स्कूल में बच्चों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका एक भविष्य हो सकता है, आपको बस ये ज़रूरत है कि आप अपने हक पे अड़े रहें, आप अपने हक को एक्सप्रेस करें एंड संगठित रहें. अगर इस तरह के थॉट एक्सप्रेस होते हैं उस लेवल पे, तब तो बदलाव आ सकता है. बट जब तक ये एक अर्बन फिनोमिनन रहता है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं होगा. क्योंकि किसी भी पार्टी में वुमेन्स ग्रुप्स भले ही दिल्ली में हो जाए, बॉम्बे में हो जाए, जो कि बोले कि हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आप महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं, पार्टियों को फिर भी पता है कि अच्छा ये सब दिल्ली बॉम्बे की चीज़ें हैं, बाकी देश में तो हमें वोट मिल ही रहा है, तो वो फिर भी नज़रअंदाज कर जाएंगे. शुरुआत बहुत लंबे दौर हो सकता है कि बहुत लंबा दौर लग जाए इसमें, बहुत निचले स्तर से आपको बहुत ग्रासरूट से शुरुआत करनी पड़े, बट तरीका मेरे अनुसार से तो वही है. जी, so Geeta ji, do you think it's high time women should do their own politics now? Yes, I think I want to just, because you were asking about the religion, caste based and all. Women is a woman. Religion, caste, nothing is there. Women is a woman first of all. We should understand that. In every family, I think the success of a woman will depend upon the strength of the family. It is, an entire family should be behind a woman when she wants to get into politics, because there is a lot of mudspilling, lot of character assassination, and sometimes you tend to lose on your family. If the family is not behind you, it is very difficult for you to actually. I have seen many successful women who are failure in their families just because it is a very difficult task. But I believe that women are always good in taking up challenges, and I wish the men also should cooperate, because I don't believe in this philosophy saying men and women are equal.
women are more equal than men, because we have more, seriously, because we have more capacities, we have multitasking, we have handled so many things in so many good ways, we have brought in so many answers for the questions which were unanswered for years together. So I feel that we have come up with so many remedies. So I feel that women are more equal because God has given the pain of birth to a woman, because naturally we have the instinct to take more pain. So if this is the situation of a woman, why are we not emphasizing on our place on this planet Earth? Why are we leaving it vacant? As he rightly said, as Shivamji rightly said, rural India. Yes, we need to work on rural India. So 50% of the population is left out in the legislative process. The laws are not in our favor. So we have to involve women more. We have to give a helping hand or give a hand to the women who want to, who is more enthusiastic of coming into politics. We are the only basis of how we empower the other women. So I feel that what he said was right. We need to go into the villages, we need to go to the colleges, whoever is empowered right now. Empower the other women, bring them into the legislative process, let them question why is a women candidate not being given a ticket in spite of all this. Unless and until we bring in this sort of revolution, and which is good for the country, which is absolutely good for the country, we need to bring in this sort of revolution. So once it happens, I am very optimistic that in the future this will happen and we will see more women in politics for the next general elections. Thank you. जया जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शुरुआत शायद एकदम फैमिली, स्कूल, कॉलेज लेवल से होनी चाहिए, तो कैसे महिलाओं को ये समझाएं कि अगर आप राजनीति पर बात नहीं करेंगे, आप अपने इलाके पर, अपने सांसद पर, अपने जो लेजिस्लेटर है आपके इलाके में एमएलए, उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, उसके कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे, उस पर लगातार आप राजनीति पर अगर आपकी बातों का विषय नहीं रहेगा, तो ये आपकी आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से आपकी स्थिति को प्रभावित करने वाला है आने वाले समय में, और अभी भी हो ही रहा है। वो आपकी कहीं ना कहीं इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लाइट नाउ। हम लोग रूरल की बात कर रहे हैं, रूरल महिला के बारे में सोचिए, वो अपने घर में भी घूंघट नहीं उठा सकती है, ना अपने हस्बैंड के बड़े भाई के सामने या फादर इन लॉ के सामने मुंह नहीं खोल सकती है, तो कहाँ जाके अपने एमएलए के बारे में चर्चा करेगी। ये परिस्थिति है गांव में। तो इससे निकालने के लिए सबसे पहले उस महिला को समझ में तो आ गई है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं बेटी को स्कूल भेजूँगी। अभी तो उस कदम पे है, ABC का शायद A+ पे है हम लोग, फिर स्कूल जाएंगे बच्चियाँ। अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया, अनपढ़ महिला और पढ़ी लिखी बच्ची का बहुत फ़र्क है। बच्चियाँ अभी जाके ब्यूटी सैलून सीख लेंगे, छोटा सा एंटरप्राइज शुरू करेंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे, वहाँ से शायद लड़का देख लें और अपनी खुद की शादी तय कर लें। कहीं कुछ हो रहा है जो धीरे धीरे होता है। पहले तो स्कूल में निकाले बच्चों को, और उसके लिए बहुत से अब जो बैकवर्ड फैमिलीज़ भी है, जैसे मुसलमान फैमिलीज़ अभी समझ रहे हैं, बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते बच्ची को, लेकिन माँ भेजना चाहती है। तो अभी कई सारे स्कूल्स हैं बनारस के अंदर, जो अच्छे बुनकर हैं जिन्होंने कुछ कमाया है, उन्होंने स्कूल खोला 1500 बच्चों के लिए। लड़के सुबह सीखते हैं, आफ्टरनून में लड़कियाँ, क्रिकेट मैचेस, डिबेटिंग, सब आफ्टरनून क्लासेस सारे लड़कियों का। 1500 लड़कियाँ बुनकर इलाके का आके स्कूल जा रहे हैं। फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन एक डेमोक्रेसी में बहुत धीरे धीरे होता है और हम लोग बहुत इम्पेशेंट है, देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी पंचायतों के बारे में। पंचायत में देयर इज़ अ फ्लिप साइड ऑल्सो। मैं बहुत सारे पंचायत मीटिंग्स में गई हूँ जहाँ महिलाओं ने कहा है कि हमने स्कूल शुरू किया, इधर सड़क बनाया, यहाँ से भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर को हमने ठेका नहीं दिया, इसलिए यहाँ सारे घर में पानी आ गया, पाइपलाइन आ गया। ये सब होता है, महिलाएं करते हैं। 21 साल की विधवा महिला ने बिहार में पूरा सड़क बनाया अपने स्कूल तक, ताकि बच्चे आसानी से जा सकें। और ये भी आंकड़े हैं कि जहाँ रिजर्वेशन में लड़कियाँ पंचायत में आई है, औरतें पंचायत में आई है, वो सेकेंड टाइम राउंड बिना रिजर्वेशन जनरल सीट में आ जाते हैं। अब इसके बाद उनको असेंबली में आने की हिम्मत है कि नहीं। स्थान तब तो पार्टी होती है, पंचायत में काफ़ी सारे पार्टीज होते हैं, लेकिन छुपे रूप से, मगर असेंबली में तो है ही पार्टीज। वहाँ के लिए
नागालैंड में वो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल्स कहते हैं कि हमारे ट्राइबल कस्टम में महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं आने देते। वेरी वेरी फ्यू women who are English speaking, jeans wearing, English song singing women are not in their politics, क्योंकि पुरुष वहाँ ट्राइबल कस्टम्स को चला के महिलाओं को नहीं आने देते। और एक अजीब छोटी सी कहानी, मुलायम सिंह यादव को पूछा गया कि आप पंचायत में तो महिलाओं को स्वीकार करते हैं, पार्लियामेंट में क्यों रोक देते हैं? उन्होंने कहा पंचायत में महिलाएं काम तो करते हैं लेकिन कानून बनाने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है। महिलाओं में इतनी अक्ल नहीं है कि वो आज के दिन हमारे लिए कानून बनाए। ये है उनका सोच। पंचायत में तो खूब आएंगे, कुछ सफल भी होंगे। सब पंचायत प्रधान, पति प्रधान वो सब नहीं है, कहीं है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे एक बूढ़ा हरियाणा में मुझसे कहा कि कुछ दिन तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने कहा मेरी गांव की बेटी तो वो कुर्सी में बैठी है, तो हम खड़े होकर उनके सामने नमस्ते तो कहूँगा। धीरे धीरे बदलाव तो आता है, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन जो पावर में नेता है ना वो अपना स्थान नहीं देना चाहते। जो पावर में नेता है वो अपना स्थान नहीं देना चाहते, और देश की जो पॉलिसी है और जो कानून व्यवस्था है वो तय करती है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है, आपकी दशा और दिशा आगे क्या होगी। शिवम, जिस तरह हम अब ग्लोबल लेवल की बात कर लेते हैं, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की हम बात करें, और जो वर्ल्ड एवरेज है उसका आधा है। अगर हम पार्लियामेंट पे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो भारत में 12% से भी कम है, तो अब अगर हम अपनी बच्चियों को किस तरह से शुरुआत से ये उनको संगठित करना पड़ेगा, उनमें ये जानकारी लानी पड़ेगी कि नहीं आपको राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इसको संगठित करने के लिए एक लंबा प्रोसेस चलेगा और बिल्कुल शुरुआत से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल सही बात है। अगर शुरुआत से करना है तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। रिजर्वेशन इज अ वे टू शॉर्टकट इट। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी जो इस देश में आया था यही सोच के आया था कि एक बार अगर हमने बढ़ावा दे दिया तो बाद की पुश्तें खुद ही सुधरती चले जाएंगी। सो दैट सेम लॉजिक कुड टेक्निकली अप्लाई टू वुमेन रिजर्वेशन टू, कि एक बार पोजीशन ऑफ पावर में अगर वुमेन आ गई तो वो बाकी महिलाओं को भी लेके आएंगी। प्लस अगर वो नहीं भी लेके आती है तो बाकी महिला उनको बस देख के कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ, खाली वही देख के हौसला बनते जाता है और उसके जरिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये तो वर्ल्ड ओवर देखिए वुमेन रिजर्वेशन बहुत सारे देशों में बहुत कम है। ये क्यों है इसका इतिहास किसी को भी बहुत क्लियर नहीं है। लाइक आई एक्चुअली सिंस वी आर सिटिंग इन अ basically bookshop, there's a book called Sapiens. Yuval Noah Harari. A lot of you might have read it. A lot of differences like caste and religion are man-made creations. So it's very easy to explain away the differences and say that all human beings are equal. On the other hand, the man to woman difference is actually a biological one. So you can't exactly explain it away. The world over women ये representation and governance कम रहा है, historically रहा है from like prehistoric times. ये क्यों है, इस पे अध्ययन करना तो बहुत मुश्किल काम है, पर इसको कैसे बदला जा सकता है ये बहुत बड़ा बात नहीं है। One way to do it is through the grassroots, and the other way to do it is the top-down approach where you bring in reservation. If we try and do both together, it is something that can very easily work. One thing is that other countries and us, other countries don't have such huge populations except China, which is in any case not democratic. वहाँ क्या, यहाँ हमारे एक MP का 25 लाख से ऊपर वोटर्स होते हैं। एक आपको पोस्ट कार्ड भेजना है, अभी तो खैर ईमेल, सबका ईमेल एड्रेस नहीं होगा, एक पोस्ट कार्ड भेजना है जो 1 रुपया का होता था, 25 लाख रुपया उसी में चाहिए, मुझे वोट दो एक पोस्ट कार्ड भेजने के लिए। समय नहीं मिलता आपको इतने लोगों के लिए। हमारे पार्लियामेंट में है द संख्या कंपैरिजन टू 1 MP in people is far too few. Why can't we increase the number of parliament seats by 1/3? That number of seats you give only to women, spread across the whole country in some even balance. ऐसे अगर करें तो शायद लड़ाई की बात नहीं होगी, एक्स्ट्रा जगह बनाना है, उसी जगह को आप सुकड़ते जाएंगे, समेटते जाएंगे तो मुश्किल है। लेकिन इसमें लोग क्या सवाल उठाते हैं, ओ पार्लियामेंट का बिल्डिंग ऐसा है फिर इसमें जगह नहीं है, फिर सेंट्रल हॉल को पार्लियामेंट से बनाना पड़ेगा, क्या क्या बेकार बातें उठाते हैं।
लेकिन ये सब एक बात है जो शायद हम लोगों को चला के देखना चाहिए। जी, सो बिफोर वी कंक्लूड आई वुड लाइक टू टेक सम कमेंट्स फ्रॉम यू शिवम, कि जैसे आप बात कर रहे थे कि वुमेन और मेन के डिफरेंस की, पहले विनीता एक सेशन कर चुके हैं टाइप कास्टिंग पर, उसी से रिलेट करना चाहूँगी कि जानबूझ के महिलाओं को इस तरह के रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं कि आप अब घर पर ही फोकस करो, आप बाहर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं हो, वहाँ बहुत गंदगी है, आप वहाँ, अरे आप क्या पॉलिटिक्स को समझती हो, इस तरह के कमेंट्स बहुत सुनने को मिलते हैं। या फिर अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगी तो इतनी लेग पुलिंग, इतनी मड स्लिंगिंग कर देंगे कि आप भागे जाओ। तो वो सारे जो हालात हैं उसके लिए किस तरह मेंटली टफ हो, सोल्यूशन क्या है? अब बिफोर वी कंक्लूड आई वुड लाइक टू टेक कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल दैट व्हाट ऑल वी कैन डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। देखिए, एक तो अगर यही है, इफ अदर वुमेन बैक अप दैट वुमेन, जितना मड स्लिंगिंग हो रहा है उसके खिलाफ अगर बाकी महिलाएं बोले, अगर एक पॉलिटिकल प्रेशर हो जाए कि आप ऐसा मड स्लिंगिंग बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं, ऐसे भी पॉलिटिक्स का स्तर पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरा है, काफ़ी निम्न स्तर पे आ गई है। अब राजनीति के लोग ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे, जिसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये तो आपके वोटर को ही समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, तो हम भैया आपको वोट नहीं देंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके रैली में आना भी छोड़ देंगे, आपका पूरा मैदान खाली रह जाएगा। तो ये मैसेज तो वोटर के ही साइड से जाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।